Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter the sentences. So earlier we have studied the types of sentences and how to identify which kind of sentences they are. There were 4 types of sentences: declarative, interrogative, imperative and exclamatory. We have already completed the first exercise of this chapter. Now we will come to the second one, B part. Complete the sentences with appropriate tag questions. So in this exercise you have to convert these sentences into a tag question. You remember the tag question? आपको एक छोटा सा पार्ट ऐड करके उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है इन सेंटेंसेस को. अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग क्वेश्चन ऐड करना है, और अगर नेगेटिव टैग सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग क्वेश्चन ऐड करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज यू विल बी कमिंग टू द पार्टी. यू विल बी कमिंग टू द पार्टी. सो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे एक नेगेटिव टैग क्वेश्चन ऐड करेंगे. विल का क्या हो जाएगा? वांट. एंड यू का आप ही और शी कुछ भी लिख सकते हैं. You will be coming to the party. Want you. You have to write want you. W-O-N-T. Want you. Now Priya likes to draw picture. ये भी पॉजिटिव है, तो आप इसे नेगेटिव बनाएंगे. Doesn't she. Priya is a girl, so we have to write she. Priya likes to draw picture. Doesn't she? Now comes third one. Peter and Ben are studying English. Peter and Ben are studying English. Write down the answer. Aren't they? Aren't they? A-R-E-N-T. They, because here 2 persons are there. Now the fourth one. Himanshu won't be late. So you can see it is a negative sentence कि Himanshu will not be late. Himanshu will not be late. So you have to write a positive tag question. Write down here will he. Himanshu won't be late. Will he? You have to write will he. Now the fifth one. Chitra can skate well. Chitra can skate well. You have to write can't she. Can't she, or we can say can't she. C-A-N-T. Can't she. Now the sixth one is Latika doesn't like milk. Latika doesn't like milk. So you can see it is a negative sentence, so you have to write a positive tag question. So you have to write does she. Latika is a girl, so you have to write she. Latika doesn't like milk. Does she. D-O-E-S. She. Does she. Seventh one. This film is boring. This film is boring. Write down isn't it. This film is boring, isn't it? Eighth one. You don't know Meera. You don't know Meera. Do you. You have to write do you, because ये नेगेटिव था, हमें पॉजिटिव लिखना है. यहाँ पे लिखेंगे do you. Ninth one. Raju can speak English well. Raju can speak English well. Can't he. Write down can't he. Okay. 10th one. We go to school by bus. We go to school by bus. Right? Didn't we. We go to school by bus. Didn't we. Now let's come to the seek part. Identify this interrogative sentence. Mark Y for yes no questions, T for tag question, C for choice question, and W for WH questions. So we already know there are 4 types of interrogative question
First one is yes and no question, second one was WH question, third one was tag question, and last one was choice question. So you have to identify which kind of sentence is it. आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और उसके अकॉर्डिंग आपको सामने मार्क करना है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल. व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल. आप फुटबॉल कब खेलते हो. यू कैन सी हियर द वर्ड व्हेन. इट इज़ एन WH वर्ड. ये क्या है, WH वर्ड है, तो यू हैव टू राइट हियर W. You have to write W. For WH question you have to write W here. Second one, he doesn't like the rainy season. Does he? He doesn't like the rainy season. Does he? तो ये क्या है, एक टैग क्वेश्चन है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टैग क्वेश्चन लगा रखा है. Write down here T. T stands for tag question. Third one, when did they come to visit you. When did they come to visit you. ये भी एक WH क्वेश्चन है. You have to write here W. Has the bus already left. Has the bus already left. So you can answer this question is yes or no. क्या बस चली गई है, हाँ या ना. आप इसका जवाब yes या no में दे सकते हैं. तो it is an yes no question. So you have to write Y here. Y stands for yes or no question. Fifth one, you have lost weight, haven't you. So you can simply see here that it is a tag question. You have to write here T. Sixth one, where do you live. तुम कहाँ रहते हो. You can see a WH word here, where. WH है यहाँ पे. So you have to write W. यहाँ पे क्या लिखोगे, W, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वाला एक WH वर्ड है यहाँ. वेयर. शुड आई कॉल यू और सेंड यू अ मैसेज. क्या मैं तुम्हें कॉल करूँ या मैसेज करूँ. सो यू कैन सी हियर इज़ अ चॉइस. ये हमें चॉइस दे रहा है कि कॉल या मैसेज. तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, चॉइस क्वेश्चन हो गया. सो यू हैव टू राइट C. C स्टैंड्स फॉर चॉइस क्वेश्चन. नाउ 8th one is you live in a city, don't you. You live in a city, don't you. So ये क्या हो गया, टैग क्वेश्चन हो गया. आप देख सकते हो लास्ट में एक टैग क्वेश्चन ऐड किया हुआ है. सो राइट डाउन T here. 9th one, did you clean up your room. क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर दिया है. सो ये होगा yes या no, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि हमारा रूम या तो क्लीन है या नहीं है. सो यू हैव टू राइट Y here. क्या लिखेंगे हम, Y. आर यू मूविंग टू ब्राज़ील. क्या तुम ब्राज़ील जा रहे हो. सो यू कैन राइट येस और नो, कि हाँ मैं जा रहा हूँ या नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ. सो यू कैन राइट इट इज़ ऑल्सो एन येस नो क्वेश्चन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स मूव अहेड. Transformation of sentences. So you can see the sentence are transformed. Sentence can be transformed from one kind to another. So आपको जैसा पता है कि sentence के 4 types होते हैं, declarative, imperative, interrogative and exclamatory. So one type of sentence can be converted into another one. कि मतलब एक टाइप का sentence आप दूसरे टाइप के sentence में convert कर सकते हो. अब हम कुछ examples देखेंगे. He came to meet me. वो मुझसे मिलने आया. ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस था. ये आपका एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस था. तो हम इसे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं. Did he came to meet me. क्या वो मुझसे मिलने आया था. तो ये क्या हो गया, एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बन गया, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया. तो आप देख सकते हो कि हमने कैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया. सिमिलरली शी इज़ कमिंग टू मीट मी. ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस था कि वो मुझसे मिलने आ रही है. अब हम इसे फिर से इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे. इज़ शी कमिंग टू मीट मी. इज़ शी कमिंग टू मीट मी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन हमने वैसा ही रखा है, पर जो हेल्पिंग वर्ब था जैसे इज़, आर, एम, जो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं
उसे उठा के हमने पहले रख दिया, मतलब जो सब्जेक्ट था हमारा शी, उससे पहले हमने अपना हेल्पिंग वर्ब रख दिया और ये पूरा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। शी इज़ कमिंग टू मीट मी, और हमने इसको उठा के शी से पहले लिख दिया इज शी कमिंग टू मीट मी, और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाले एग्जांपल में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इज, आर, एम, विल, शैल कुछ भी नहीं था, तो हमने क्या लगा दिया, डिड लगा दिया और सेम सेंटेंस वहाँ पे पुट कर दिया, डिड ही कम टू मीट मी, और इस तरह ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। लेट्स सी द थर्ड वन, शी सिंग्स वेल। शी सिंग्स वेल, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, इसे हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डज शी सिंग्स वेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्ब था उसके साथ एस लगा हुआ था, तो अगर जब भी आपके यहाँ एस या ई एस लगा होता है सेंटेंस वर्ड के साथ वर्ब के अंदर, तो आप क्या लगाते हो, पहले डिड नहीं लगाते हो, तब आप लगाते हो डज, और वही सेंटेंस एज इट इज़ लिख सकते हैं, डज शी सिंग वेल, फिर ये वाला एस यहाँ से हट जाता है क्योंकि हमने वो डज में यूज़ कर लिया, डज शी सिंग वेल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ द फोर्थ वन, शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, तो अब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है हैज़, शी हैज़, तो हैज़ को उठा के हम पहले रख देंगे, तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा, हैज़ शी कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या उसने वर्क कंप्लीट कर लिया, तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। नाउ लेट्स सी, रवि कैन स्विम। रवि तैर सकता है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस था। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, कैन, तो कैन को हमने उठा के वापस रवि से पहले रख दिया, तो ये क्वेश्चन बन गया, कैन रवि स्विम, क्या रवि तैर सकता है, ये एक इंटेरोगेटिव बन गया। तो इंटेरोगेटिव बनाने का सबसे इजी तरीका है, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो वो उसे सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। नाउ लेट्स मूव, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, तुम कितने दयालु हो जो तुमने मेरी हेल्प की, तुम कितने काइंड हो जो तुमने मेरी हेल्प की, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। अब हम इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, कि ये बहुत दयालु काम था जो आपने मेरी हेल्प की, तो हमने हाउ की जगह क्या लिख दिया, इट वॉज, हाउ की जगह क्या कर दिया, इट वॉज, और वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगेगा। नाउ द लास्ट एग्जांपल, राजेश फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट। राजेश अपने अटेम्प्ट में, अपनी कोशिश में फेल हो गया, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था, आपको इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है, अगर आप उसे नेगेटिव भी बना रहे हो तो बात वही की वही रहनी चाहिए। आप लिखोगे राजेश डिड नॉट सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट, हमने पहले में क्या कहा था कि राजेश फेल हो गया अपने अटेम्प्ट में, पर दूसरे सेंटेंस में भी यही होना चाहिए कि राजेश फेल हो गया, पर उसे नेगेटिव वे में लिखना है कि राजेश डिड नॉट सक्सीड, राजेश सक्सीड नहीं हुआ, तो मतलब क्या हुआ, फेल हो गया। तो सेंटेंस का हमें मीनिंग नहीं बदलना है, बस उसके जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्म बदलना है, सुनने में वो अलग लगना चाहिए पर उसका मीनिंग वही रहना चाहिए। ओके, नाउ द डी पार्ट, चेंज द सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड, आपको इन सेंटेंसेस को चेंज करना है जैसा आपको बताया हुआ है। फर्स्ट वन, रतन इज अराइविंग एट 9 AM, रतन 9 बजे आ रहा है, हमें इसे इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने का सबसे इजी वे मैंने क्या बताया था, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसे हमें सब्जेक्ट से पहले रखना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है इज़, और सब्जेक्ट क्या है, रतन, तो हम इसको रतन से पहले रख देंगे, और ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, इज़ रतन अराइविंग एट 9 AM, और फिर क्वेश्चन मार्क लिखो,
is Ratan arriving at 9 AM and then question mark क्योंकि interrogative sentence है. Now the second one, Rajan is always on time. Rajan is always on time. तो हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. इसका मीनिंग नहीं चेंज करना है कि राजन है वो हमेशा टाइम पे आता है, पर हमें इसे नेगेटिव वे में लिखना है और बात वही रहनी चाहिए. तो आप लिखिए राजन इज नेवर लेट. तो आप लिखोगे राजन इज नेवर लेट. तो इसका मतलब ही यही होगा कि राजन हमेशा टाइम पे आता है, पर हमने उसमें नो नेवर वर्ड यूज़ कर लिया और वही मीनिंग रखा है. राजन इज नेवर लेट. नाउ द थर्ड वन, हाउ काइंड ऑफ हर टू हेल्प द इंजर्ड पपी. हाउ काइंड ऑफ हर टू हेल्प द इंजर्ड पपी. ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको इसे डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करना है. सो जैसा हमने एग्जांपल में देखा था, हाउ की जगह क्या लिखोगे आप, इट वॉज काइंड ऑफ हर. इट वॉज काइंड ऑफ हर टू हेल्प द इंजर्ड पपी. इट वॉज काइंड ऑफ हर टू हेल्प द इंजर्ड पपी, देन फुल स्टॉप. डोंट पुट द एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, हमें डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करना है. फोर्थ वन, दे आर इन द स्विमिंग पूल. वो स्विमिंग पूल में हैं. ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है आपका और आपको इसे इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है. तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि आर यहाँ है, उसे सब्जेक्ट से पहले तो लिख दीजिए आर दे इन द स्विमिंग पूल. आर दे इन द स्विमिंग पूल, देन क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क. नाउ फिफ्थ वन, Shadan is in the bedroom. Shadan is in the bedroom, change into interrogative. हमारे पास यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है तो वो Shadan से पहले चला जाएगा. Is Shadan in the bedroom? Is Shadan in the bedroom? Then question mark. Then put the question mark. Now sixth one, are the children tired? Are the children tired? तो हमें इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. ये क्वेश्चन था, तो जैसा हम कर रहे थे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसे सब्जेक्ट से पहले पुट कर रहे थे, अब हमें उल्टा करना है. तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे उठा के सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे. तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन आर टायर्ड. द चिल्ड्रन आर टायर्ड, बच्चे थक गए हैं. देन फुल स्टॉप, नॉट क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप लिखना है. The children are tired, full stop. Seventh one, do cheetah run fast? क्या चीता तेज भागता है? ये क्वेश्चन था. Now change to exclamatory sentence. अब हमें इसे एक exclamatory sentence में कन्वर्ट करना है. तो लिखिए how fast cheetah run. तो सेवंथ का आंसर लिखिए how fast cheetah runs, then exclamatory sign आपको यहाँ लगाना है. एट्थ वन, can you pick me up at 10 o'clock? Can you pick me up at 10 o'clock? तो ये क्वेश्चन था और आपको इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो आप लिखोगे you can pick me at 10 o'clock, then full stop. You can pick me at 10 o'clock. नाइन्थ वन, डज हिज मदर बेक डिलीशियस केक. इसे भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है. ये क्वेश्चन था, तो आप लिखोगे हिज मदर बेक्स डिलीशियस केक्स. तो आपको लिखना है हिज मदर बेक्स डिलीशियस केक्स. नाउ द टेंथ वन, how awful the weather is. how awful the weather is. आपको इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो आप लिख सकते हो the weather is awful. the weather is awful. Okay, so I hope you have understood this chapter. We will start our next chapter in the next video. Repeat this exercise by yourself and
try to find other examples so you can understand it well. Thank you and have a nice day.